شام ڈھل چکی تھی۔ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں پرانی چارپائی پر بلقیس بیگم تیز بخار میں تڑپ رہی تھی۔ ان کی سانس بھاری تھی اور کمزور آواز میں کراہنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، مگر اس گھر میں صرف بیماری کا سناٹا تھا۔ اسی وقت زہرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دن بھر کے کام سے تھکی ہوئی تھی، مگر ساس کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں فکر صاف جھلکنے لگی۔ امی جان، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ بلقیس بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کمزور لہجے میں بولی، ہاں بہو، میں نے تجھے پکارا ہے۔ میرا جی بہت گھبراتا ہے اس اندھیرے کمرے میں، تو ذرا مجھے سہارا دے کر باہر صحن میں لے چل۔ وہاں کھلی ہوا میں مجھے تھوڑا قرار آئے گا اور میں تیری تھوڑی بہت بیٹھے بیٹھے ہی مدد کر دوں گی۔ تو اکیلی سارا دن لگی رہتی ہے، تجھے کام کرتے دیکھ کر میرا دل دکھتا رہتا ہے بیٹی۔ زہرا نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تیز بخار محسوس ہوتے ہی وہ گھبرا گئی۔ ارے نہیں امی جان، ہرگز نہیں، آپ آرام سے لیٹیے۔ آپ کا جسم تو آپ کی طرح تپ رہا ہے۔ اس حال میں آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ زہرا بیٹی، مجھے تیرے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو ابھی نئی نئی اس گھر میں آئی ہے اور اتنے دکھ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ شاید تو دل میں سوچتی ہو کہ کیسی ساس ملی ہے۔ میری بیماری کی وجہ سے تجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ امی جان، ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ میری ماں جیسی ہیں۔ آپ بیمار ہیں اس لیے ایسا سوچ رہی ہیں۔ آپ بس آرام کریں۔ آپ کی خدمت میرے لیے خوشی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میرا بہت خیال رکھتی ہے زہرا۔ آج مجھے بہو کی محبت کا مطلب سمجھ آیا۔ نازیہ کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اللہ تجھے اس کا اجر دے بیٹی۔ تھوڑی دیر بعد زہرا نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو چھپا لیے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ذہن میں بار بار خالی ہانڈی اور بجھا ہوا چولہا آ رہا تھا۔ اسے فکر تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا امی، اب آپ کی طبیعت تھوڑی سنبھل رہی ہے، میں ذرا باہر ہو کر آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہے اس وقت؟ شام ہو گئی ہے اور تو باہر جانے کی بات کر رہی ہے۔ امی جان، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ قاسم ابھی تک نہیں آئے، اس لیے میں نے پڑوسن شگفتہ آپا سے بات کی ہے۔ وہ اناج صاف کروائیں گی اور بدلے میں ہمیں آج رات کے لیے اناج دے دیں گی۔ ہائے میری قسمت! تو شگفتہ کے گھر جا کر کام کرے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شاید تو دل میں سوچتی ہو کہ کیسا غریب گھر مل گیا۔ تیری ماں کے خواب اور یہ کام سب کتنا بدل لیا۔ امی جان، ایسا مت سوچے۔ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ یہ وقت کی آزمائش ہے۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ محنت کر کے حلال کا کھانا مل جائے اور میں اپنے شوہر کا ساتھ دے سکوں۔ تو اس گھر کی رحمت ہے بیٹی۔ تیرے جیسی بہو تو لاکھوں میں ایک ملتی ہے۔ جا، اللہ تیرا نگہبان ہو۔ زہرا جھوپڑی سے باہر نکل گئی۔ بلقیس بیگم دعا کرتے دیکھ رہی تھی اور یقین تھا کہ اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گلیاں خاموش تھیں۔ قاسم دن بھر کی تھکن کے بعد جھونپڑی واپس آیا۔ جیسے ہی اس نے زہرا کو چولہا سنبھالتے دیکھا، اس کی تھکن لمحوں میں دور ہو گئی۔ زہرا نے قدموں کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ ارے آ گئے آپ، بہت تھک گئے ہوں گے۔ تھوڑا سا دودھ رکھا ہے، آپ کے لیے آدھی کپ چائے بنا دیتی ہوں، تھکن دور ہو جائے گی۔ زہرا، چائے بنانا، مگر پانی تھوڑا زیادہ ڈال دینا تاکہ ہم دونوں آدھی آدھی کپ پی سکیں۔ میں اکیلا نہیں پی سکتا، تم بھی تو شام سے تھکی ہو۔ آپ کو میرا بڑا ہی خیال رہتا ہے۔ آپ ایسا کریں، ہاتھ منہ دھو کر ذرا امی جان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سارا دن بخار میں تڑپتی رہی ہیں۔ زہرا، تمہارا خیال اس لیے رہتا ہے کیونکہ آج کل اتنی سمجھدار بیوی ملنا مشکل ہے۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہ بنائیں۔ آئیے، کیا آپ کو کوئی مستقل کام ملا کہ نہیں؟ ہاں بیٹا، میں بھی آج پورے دن اللہ سے ہی التجا کر رہی تھی کہ میرے قاسم بیٹے کو کوئی اچھا اور عزت کا کام مل جائے۔ ارے امی، اب کیا بتاؤں میں،
कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई पक्का काम हाथ नहीं लग रहा है। शहर में मंदी बहुत है। वैसे अभी कुछ दिन काम चलाने लायक मजदूरी तो मिल गई है। फिर तो अच्छी बात है, कुछ दिन के लिए ही सही। हमारी परेशानी तो दूर होगी। और वैसे भी आप फिक्र न करें, मैंने शगुफ्ता आपा से बात कर ली है। उन्होंने मुझे और भी 2-3 घरों में अनाज साफ करने का काम दिलाने का वादा किया है। बहू का दूसरों के घरों में काम करना मुझे तोड़ देता है। कभी ये घर नौकरों से भरा था, आज सब कुछ लट गया। उम्मी, मैं हूं ना, मेहनत करूंगा, अल्लाह हमारे दिन बदल देगा। असलम ने सब कुछ छीन लिया, माँ और भाई को भी भूल गया। जो उसने किया अल्लाह देख रहा है। आप फिक्र न करें, आराम करें। कासिम ने अपनी माँ को सहारा देकर लिटाया। जहरा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। कुछ खा लीजिए, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया। नहीं जहरा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, दिल बहुत भरा हुआ है। आओ जरा बाहर जाकर बैठते हैं। कासिम और जहरा खामोशी से झोपड़ी से बाहर निकल आते हैं। झोपड़ी के बाहर पुरानी चारपाई पर कासिम सर झुकाए बैठा था। दूर झिंगरों की आवाज गूंज रही थी। जहरा खामोशी से आकर उसके पास बैठ गई। मैं आपसे एक बात पूछूं? पिछले कई दिनों से एक सवाल मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है। हाँ जहरा, पूछू ना, ऐसी भी क्या बात है जो तुमको इतना सोचकर पूछना पड़ रहा है? अम्मी जान, आपके बड़े भाई का जिक्र करती रहती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सगे भाई दुश्मन बन गए? हाँ जहरा, मेरा एक बड़ा भाई है असलम। आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हमारे वालिद गांव के मुअज्जिज और मालदार आदमी थे। उनकी जमीनें, कारोबार और बड़ी कोठी सब उनकी मेहनत से थी। फिर क्या हुआ? अब्बू के इंतकाल के बाद असलम भाई बाबी नाजिया के कहने में आ गए। असलम ने वकील और पुलिस के जरिए सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। हालांकि वो कोठी अब्बू ने हम दोनों भाइयों के लिए बनवाई थी। हमें कोठी से निकाल कर यहाँ छोड़ दिया गया, जहाँ कभी अब्बू के मवेशी होते थे। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है। आप बिल्कुल दुखी ना हो। मुझे यकीन है आपने कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर हमारे नसीब में है तो वो जरूर मिलेगा। हम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। कासिम की आंखों में नमी आ गई। जहरा ने आसमान की तरफ देखकर दिल में दुआ की, या अल्लाह, हकदार को उसका हक जरूर दिलाना। अगली सुबह सूरज की रोशनी झोंपड़ी में फैल रही थी। जहरा फजर के वक्त उठ चुकी थी। खाली हांडी और टोकरी में पड़े 2 प्याज देखकर उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने हौसला किया और चूल्हा जला दिया। आज बस यही है, रोटियां बना लेती हूँ, अल्लाह बरकत देगा। रोटियां तैयार करके वो बिल्किस बेगम के पास आई। अम्मी जान, लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बहू, मुझे जरा सी भी भूख नहीं है। मेरा जी कुछ लेने को नहीं चाह रहा। नहीं अम्मी, उठिए, थोड़ा सा खा ले, फिर आपको कड़वी दवा भी तो खानी है। बिल्किस बेगम ने अभी नवाला लिया ही था कि बाहर से तेज आवाज गूंजी, कोई है इस खंडर में या सब मर गए? नाजिया रेशमी कपड़े पहन झोपड़ी में आई। उसके चेहरे पर नफरत थी। अरे बिल्किस बेगम, आप तो अब तक चारपाई से ही लगी हुई हैं। कहाँ है वो तुम्हारी नई नवेली लौडली बहू? सुना है जगह जगह अनाज साफ करती फिर रही है। क्या दिन आ गए हैं। नाजिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या और छीनना चाहती हो हमसे? हमारा सब कुछ तो तुम पहले ही हड़प चुकी हो। सब कुछ कहाँ? ये झोपड़ी और उसके आसपास की जमीन बाकी है। मैंने वकील से बात कर ली है, ये जमीन भी हमारे नाम है। 4 दिन में जगह खाली कर दो, वरना पुलिस बुलाकर सामान बाहर फेंकवा दूंगी। समझी बुढ़िया? भाभी, जबान संभाल कर बात करें। ये आपकी सास है। जमीन और माल के लिए इतना ना गिरे कि अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। अच्छा, तो है वो नई जबान दराज बहू। अपनी औकात में रहकर बात कर। कल तक ये जगह खाली होना चाहिए, वरना याद रखना मेरा वकील बहुत पहुंचा हुआ है।
नाजिया पीर पटकते हुए और दुपट्टा लहराते हुए वहां से चली गई। आलीशान ड्राइंग रूम में फानूस चमक रहे थे। असलम सोफे पर बैठा सोच में था। नाजिया गुस्से में आई। चेहरे पर फतह की चमक थी मगर लहजे में जहर था। सुन रहे हो असलम, आज मैं तुम्हारी माँ को साफ साफ कह आई हूँ कि कल तक झोपड़ी खाली कर दे। अब बहुत हो गया ये रहमदिली का ड्रामा। अगर वो ना निकले तो मैं पुलिस और वकील लेकर जाऊंगी। क्या तुम वहां गई थी नाजिया? आखिर तुम चाहती क्या हो? इन बेचारों को इस टूटी हुई झोंपड़ी में तो चैन से जीने दो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो मेरी माँ है और कासिम मेरा छोटा भाई। अरे वाह, अब माँ और भाई याद आ गए। जब जायदाद अपने नाम करवा रहे थे तब भाईचारा कहाँ था? देखो असलम, ये झोपड़ी और जमीन कीमती है। मैं यहाँ एक जदीद डेयरी फार्म बनाना चाहती हूँ। बाड़ा तो पहले ही हमारे कब्जे में है, बस ये थोड़ी सी जमीन बाकी है। नाजिया, तुम कितनी बेरहम हो गई हो। वालिद साहब के बाद मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए था। मैं बड़ा बेटा था, मगर तुम्हारी बातों में आकर मैंने उनका हक छीन लिया। रातों को नींद नहीं आती। वालिद साहब का चेहरा याद आता है। देखो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं। दुनिया जज्बात से नहीं, पैसे से चलती है। मुझे इस झोपड़ी वाली जगह चाहिए। कल जाकर देखो उन्होंने सामान बांधा है या नहीं। नाजिया, वो झोपड़ी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें हमारी माँ रहती है। उस बड़ी कोठी में क्या कमी है जो तुम अब उनकी छत भी छीनना चाहती हो? मुझे बहस नहीं करनी। मैंने वकील को कह दिया है। या वो खुद निकलेंगे या पुलिस निकाल देगी। अब तुम जाओ और अपना काम करो। जहरा बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटी, अब इस उम्र में मैं कहाँ ठोकरे खाऊंगी? इतनी बड़ी कोठी से भी उनका पेट नहीं भरा। जहरा, वो बहुत ताकतवर है। उनके पास पैसा है, वकील है। हम गरीबों की कौन सुनेगा? अम्मी जान, क्या वाकई हमारे पास कोई भी ऐसा कागज नहीं है जिस पर ये लिखा हो कि अब्बा जी ने ये जमीन दोनों भाइयों में आधी आधी बांटी थी? हाँ बहू, एक पुराना लकड़ी का संदूक था जिसमें तुम्हारे ससुर जी ने कागजात और वसीयत रखी थी। वो कहते थे दोनों बेटों का हक बराबर है, मगर तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद ये संदूक कहीं गायब हो गया, जैसे जमीन या आसमान ने खा लिया हो। इसी लम्हे बाहर से कासिम के तेज कदमों की आवाज आई, जो खुशी से अंदर दाखिल हुआ। जहरा, अम्मी देखो, मुझे बड़े ठेकेदार के पास काम मिल गया है। काम 6 महीने चलेगा और कुछ पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। अब हमें 6 महीने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कासिम का खुश चेहरा देखकर जहरा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट आई, मगर फिर नाजिया की धमकी याद आकर वो उदास हो गई। क्या हुआ जहरा? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, तुम खामोश क्यों हो? कासिम, खुशी की खबर बड़ी है, मगर आज नाजिया भाभी आई और धमकी दी कि कल झोपड़ी खाली कर दो, वरना पुलिस के जरिए हमें यहाँ से निकाल फेंकेगी। क्या अब उनकी नजरें उस झोंपड़ी पर हैं? ये जमीन तो अब्बा जी ने हमें दी थी। ऐसे कैसे वो हमें निकाल सकती है? मैं कल ही थाने जाऊंगा। नहीं कासिम, आप जानते हैं कि पुलिस भी उन्हीं की होती है जिसकी जेब भारी हो। तो क्या हम हार मान ले? कासिम, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है। जो दूसरों का हक मारते हैं, अल्लाह उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देता। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। कासिम खामोशी से बैठ गया। आधी रात थी और बस्ती गहरी नींद में थी। झोपड़ी में परेशानी का माहौल था। कासिम और बिल्तीस बेगम सो गए। जहरा चटाई पर लेटी थी और दिल में दुआ कर रही थी। अचानक पीछे बाड़े से आवाज आने लगती है। ये कैसी आवाज है? इतनी रात गए, ये भैंसें इस कदर दर्दनाक तरीके से क्यों रो रही हैं? वो थोड़ी देर सुनती रही। आवाज में ऐसी तड़प थी जैसे कोई बेज़बान किसी बड़ी तकलीफ में हो। जहरा के दिल में हमदर्दी जागी।
बाड़े का मुलाजिम पता नहीं कहाँ है, जानवर बेसहारा हैं। कहीं किसी जहरीले कीड़े ने तो नहीं काट लिया? नहीं, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे जाकर देखना ही होगा। बाड़े में पहुंची, जो अब असलम और नाजिया के कब्जे में था। जहरा को देखकर भैंस खामोश हुई और आगे बढ़कर उसके दुपट्टे का कूना मुंह में दबा लिया। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कहाँ ले जा रही हो? डराओ मत मुझे। भैंस जहरा को घसीट कर बाड़े के कोने में ले गई, जहां मिट्टी खुदी हुई थी और जमीन पुरमार रही थी। जहरा ने लालटेन नीचे की तो मिट्टी के नीचे कोई चीज चमक रही थी। यहाँ तो कुछ दफन है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बक्सा हो। जहरा ने लोहे का टुकड़ा उठाया और मिट्टी हटाने लगी। जल्द ही एक भारी पुराना लकड़ी का संदूक बाहर आ गया। संदूक देखकर भैंस खामोश हो गई और आराम से बैठ गई। या अल्लाह, ये वही संदूक है जिसका जिक्र अम्मी करती थीं। ये यहाँ मिट्टी में क्यों था? लगता है किसी ने जानबूझकर छुपा दिया था ताकि ये ना मिले। गाकर भारी संदूक घसीटा और अंधेरे में चुपचाप झोंपड़े के अंदर ले आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे रब ने इस बेजुबान के जरिए मुझे वहां बुलाया था। ये कोई आम संदूक नहीं है, ये हमारी तकदीर का फैसला है। लेकिन अभी सब सो रहे हैं, मैं सुबह होते ही सबके सामने उसे खोलूंगी। जहरा उस संदूक के पास ही बैठ गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक फातिहाना चमक थी। सुबह का वक्त था। कमरे में खामोशी फैली हुई थी। जहरा सबको जगाकर उस पुराने संदूक के पास ले आई जो उसने रात को निकाला था। जहरा, ये पुराना और भारी संदूक कहाँ से आया? या अल्लाह, यही वो संदूक है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रही थी। बहू, ये तुझे कहाँ मिला? अम्मी, ये अल्लाह की गैबी मदद है। रात में एक भैंस ने रो रो कर मुझे वहां बुलाया और जमीन खोद कर उसकी तरफ इशारा किया। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। जहरा ने ताला तोड़ा। ढक्कन खुलते ही पुराने कागजों की खुशबू फैल गई। यही वसीयत है हनीफ साहब की। उसमें साफ लिखा है कि जायदाद दोनों बेटों में बराबर है। लम्हे बाहर जीप रुकी और पुलिस इंस्पेक्टर असलम, नाजिया और वकील अंदर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को फौरन निकालें, ये जगह हमारी है। हमारे पास अदालती हुक्म है, ये जायदाद असलम साहब की है। आपके पास कोई सबूत नहीं कि ये घर आपका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर सबूत चाहिए तो ये लीजिए। जहरा ने वसीयत और असल कागजात इंस्पेक्टर को दे दिए। नाजिया और असलम के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो असली वसीयत है, सरकारी मोहर भी मौजूद है। असलम साहब, आपने बड़ा जुर्म किया है। कागजात छुपाना और धोखा देना आपको जेल ले जा सकता है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब सच है। मैंने लालच में आकर कागजात दफन किए थे। अम्मी, कासिम, मुझे माफ कर दो। बेटा, गुनाह का बोझ बहुत भारी होता है। आज सच ने खुद को जाहिर कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी को जेल नहीं भेजना, हमें बस हमारा हक और टूटा हुआ खानदान वापस चाहिए। मैं वादा करता हूँ, आज ही कासिम को उसका आधा हक दूंगा। नाजिया, जिसका गुरूर टूट चुका था, खामोशी से आगे बढ़ी। अम्मी, जहरा, मुझे माफ कर दे। कासिम ने फख्र से जहरा की तरफ देखा। जहरा, तुम वाकई हमारे लिए अल्लाह की रहमत बनकर आई हो।